آپ سے صرف یہ ہے کہ جتنا اچھا صوبہ ہے اتنے ہی اچھے آپ بن کے دکھائیں جو آپ بن سکتے ہیں. ابھی آپ انور، ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں تو جناب، ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان کی وجاہت کے بارے میں کچھ کہا تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ بھی ان کو بتا دیجیے آپ. نہیں، جتنے میں نے خوش شکل بلوچی دیکھے مطلب اتنا تو پنجابی بھی نہیں دیکھا. بہت خوش شکل ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. اور ایک جو ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اقبال نے لکھا. واہ واہ. بلوچستان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ بات سنیں، ابھی ہم لوگ آزاد ہیں. ہم سب آزاد ہیں، تو جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں. تو اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. مگر آپ ہی کو آگے جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے. یہ زمین آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آسمان آپ کا ہے. آپ لوگ زندہ رہیں، خوش رہیں اور لڑتے رہیں پاکستان کے لیے، کام کرتے رہیں پاکستان کے لیے. انور صاحب، آپ کو بلوچستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ مجھے کھویا پسند ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کھویا تو پنجاب یا سرحد کی سوغات ہے، یہاں کہاں؟ نہیں، یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے. میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں، آپ اس کا ٹیڑھا جواب دے دیتے ہیں. انور مقصود اسی لیے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو. یہ اقبال نے کہا. ارے صاحب، تھوڑا سا سلسلہ چینج کرتے ہیں. یہ آپ کا اس طرف سلسلہ آنا کیسے ہوا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ بینک میں پہلے گئے تھے، اور بینک چھوڑ کے آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ میں امتحان پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا، میرے بہنوئی نے سفارش کی، آغا سنابدی سے مجھے نوکری مل گئی، کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں مل سکتی تھی. مگر ملازمت مل گئی، مگر وہاں مجھے پتہ نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے. تو میں جب بینک 1 بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جایا کرتا تھا. 1 بجے آپ گھر آ جاتے؟ ہاں، کہ بینک بند ہو گیا. 1 مہینے بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام 1 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو میں نے بینک چھوڑ دیا. میں پینٹ کرتا تھا، میں نے پینٹنگ سے 1958 میں میری پہلی ایگزیبیشن کی. اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پہ چلتا ہے. میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بک جاتی ہیں ساری. پھر میں ٹی وی کی طرف آیا. زمانہ تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا. جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا. بہت دن رہا؟ ہاں. ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا. عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے. وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں. مگر والد صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے دیں پھر چلے جائیں. تو پروگرام شروع ہوا 7:30 بجے. 8:30 بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا. میں نے بولنا شروع کیا تو وہ 1 بجے تک بیٹھے رہے اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر
रावलपिंडी में घर था उनका, और एक बड़ी गाड़ी जिसमें पहले कहीं बैठा नहीं मैं, उसमें वायरलेस वगैरह लगे हुए, प्रेसिडेंट हाउस में गई है, खुद निकल के आए बाहर, आइए अंदर। वहाँ सिद्दीक सालिक साहब, सारे जनरल जितने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस सफ़ीर के पास जाना है, आप 5 घंटे बकवास करते रहे। तो मैं 5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा सर आप कितने दिन के लिए आए थे? 90 दिन के लिए। 8 साल हो रहे हैं, तो आपको तो आदत है देर तक बैठने। तो उन्होंने कहा आप में से किसी की हिम्मत है ये बात कहने की जो अनवर ने कही है? मैंने कहा नहीं सर, छोड़ दें। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा है। हाँ, कह लगे आपको हम बुलाते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो मैंने कहा सर तनख्वाह आपको मिलती है बॉर्डर क्रॉस करने की, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। मगर मैं जान देता हूँ उन सिपाहियों पर जो हमारी खातिर सरहद पे जाने दे रहे हैं। रोज़ाना आप पढ़ लें अखबार में कि क्वेटा में सरहद पर, पंजाब के बॉर्डर पर सिपाही शहीद हो रहे हैं। किस लिए? जो हमारे लिए कर रहे हैं। तो फौज हमारी ज़रूरत है। हमेशा मैंने ISPR के लिए बहुत काम किया है, मगर फौज को भी ये समझना चाहिए हम भी उसकी ज़रूरत है। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर वो किस पे हुकूमत करेंगे? तो लिहाजा दोनों की दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और 76 बरस से चली आ रही है। एक फ़िज़ा ऐसी मुकद्दर हो गई है जिसमें ये एहसास हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी सोविया के वली अहद ने आने से मना कर दिया यहाँ, अब मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका एक नाम आते ही एक और साहब का नाम याद आता है जहन में, मरहूम मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर, क्या बात है जी। आपने लूज टॉक एक अरसे तक किया उनके साथ। मैंने स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3:15, स्टूडियो 4:15, शो टाइम अनवर के साथ। अनवर मैंने 32 बरस काम किया मुल्क। जहाँ ये इतने तंज़ो मिज़ाज के और उतना एक सीरियस प्ले, हाफ प्लेट। मोइन के साथ मैंने 11 प्लेस किए, मगर मोइन को स्क्रिप्ट चाहिए था। अदाकार बहुत बड़ा था, बिल्कुल। उसे स्क्रिप्ट मिल जाए, अच्छा स्क्रिप्ट है तो मोइन से अच्छा अदाकार आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोइन के लेवल का कोई एक्टर नहीं था। क्या यही वजह है कि मोइन नहीं है तो वो स्क्रिप्ट भी आप नहीं लिख रहे किसी और के लिए? अगर मोइन नहीं है, अल्लाह उनको जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए, अगर वो नहीं है तो आपने लिखना भी छोड़ दिया क्योंकि अब वो नहीं है? ये मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। मोइन से अच्छे एक्टर मिल गए मुझे। आप चाहते नहीं है कि ये टीवी के लिए कुछ लिखे? जरा और जोर से तालियां बजाएं ताकि मुझे मोइन से अच्छा एक्टर मिल गया है। आजकल बेकार है वो, तो अगले हफ्ते से मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड। आप ये सरप्राइज रखना चाहते हैं? नहीं, आप पूछ लें। बताइए। शेख रशीद साहब हैं, वो अदाकार हैं? वो बहुत अच्छे अदाकार हैं और मेरे स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बात ये है कि ये अदबी प्रोग्राम है जी जी, और क्वेटा में हो रहा है, और ऐसा हुजूम ना मैंने इस्लामाबाद में देखा, ना कराची में देखा, ना लाहौर में देखा। आपको मुबारकबाद, और शाह साहब को मुबारकबाद। शाह साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने, शाह साहब एक अजीब व गरीब आदमी है, ये अल्लाह आदमी बनाता है। शाह साहब को तो जिन्हों ने बनाया। इतना हिम्मत, इतनी ताकत मैंने किसी इंसान में नहीं देखी कि जो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब सोते नहीं, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से जाग रहे हैं
وہ जाग इस वजह से रहे कि थोड़े से इनके हालात ख़राब थे और ये फेस्टिवल करना था, मगर शाह साहब को दाद देना चाहिए कि उनकी हिम्मत है, उन्होंने कर लिया और इतना बड़ा फेस्टिवल कर लिया। शाह साहब जीते रहिए। अदर साहब, माशाल्लाह आपका ख़ानदान बड़ा ब्लेस्ड है। फातिमा सुरैया भजिया हुई, आप हुए, अहमद मकसूद हमीदी साहब हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, आपके साहबजादे हुए माशाल्लाह, कंपोज़र, सिंगर, अब तो पपेटियर भी हैं माशाल्लाह। फिर ज़हरा निगाह हुई, ज़ुबैदा हुई जो ज़बरदस्त हमारी सेलिब्रिटी शेफ़ थी। फिर BBC में आपकी एक बहन थी सारा। इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं, अपने वालिद या वालिदा को? वालिदा। किस तरीके लिहाज? मेरी वालिद का इंतकाल तो 42 साल की उम्र में हो गया था। हम 10 भाई बहन थे, सिर्फ माँ ने हमको पाला। और इनसे मैं कह रहा हूँ, बलूचिस्तान भी आपकी माँ है, तो अपनी माँ का ख्याल कीजिए, आपको ज़िंदगी की हर आसाइश मुहैया हो जाएगी। बलूचिस्तान आपका है और फिर हमारा है, पहले आपका है, तो पढ़ते रहिए, दिल लगाइए। बस एक बात का ख्याल रखिए बेटा कि सच बोलो। सच बोलने की सबसे अच्छी बात यह है कि सच बोलकर आदमी भूल जाता है क्या कहा था। झूठ बोलकर सारी ज़िंदगी याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था। आप सच बोलें और खुश रहें। इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें, मैं ये चाहूँगा कि आप ज़हरा निगाह का, अगर आप वो जंगल के भी कुछ कानून है वो नज़्म सुना दें तो क्या बात है। ज़हरा निगाह की एक नज़्म है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाके लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब नदी के गीले पानी में बहे का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुद फिर अल्लाह से दुआ मांगती हैं कि दाना व बीना मुनसिफ़ व अकबर, खुदा बंदा मेरे इस मुल्क में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। आखिर में अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम? मैं बेटा, मेरी उम्र 84 बरस है, मैं अब पैगाम देके क्या करूँगा, मगर मेरी दुआ है कि ये सुबह खुश रहे, फले फूले, लोग घर आए वापस, सब मिलें, बैठें, हंसें, मुस्कुराएं। इससे बड़ी दुआ मैं सूबे को नहीं दे सकता। बलूचिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।